Good morning, students. So, today we are going to start a new chapter, chapter number 7, and the name of the chapter is The Outsider. Now, in this story, we are going to read about a child who is handicapped. Handicapped means physically challenged. That means जो अपाहिज होते हैं. ठीक है? So, let's start. Now, read a poem about the life of a physically challenged person. Now, we will read something about अ फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन कि जो इंसान फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, जो पैर से प्रॉब्लम होती है, जिनके यहाँ हाथ में प्रॉब्लम होती है, जो चल फिर नहीं सकते ढंग से, अपने इंडिपेंडेंसी से नहीं चल सकते, किसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं, वो इंसान उनकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या सोचते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. I am handicapped and wheelchair bound, expected to sit and not make a sound, just to smile and let the world go by with saintly patience and never sigh. Now, here the poet means the person who is handicapped is saying, I am handicapped, मैं handicapped हूँ and I am wheelchair bound. That means I am completely dependent on a wheelchair कि मैं wheelchair पे dependent हूँ. And people expect from me to sit एंड टू बी क्वाइट कि लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं चुपचाप एक जगह बैठा रहूं और कुछ भी ना बोलूं. पीपल एक्सपेक्ट मी टू सिट एंड स्माइल कि मैं बैठा रहूं और स्माइल करता रहूं और मेरे आसपास जो भी हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है, मैं उसको लेट गो करता रहूं, जाने दूं, सोचूं ना उसके बारे में. And with saintly patience, with great patience and never take a deep breath. मतलब मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ बोलूँ भी ना और बस जो भी हो रहा है उसे सहता रहूँ. Inside my head thoughts come and go. Ideas are born which long to flow from my lips and link me with others, but my words sound strange, so no one bothers. Now, I think a lot and many thoughts come to my mind and they go easily. मैं बहुत सोचता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते भी हैं और चले जाते हैं. आइडियाज़ कम टू माई माइंड विच आर लॉन्ग टू फ्लो. जो मेरे माइंड में आइडियाज़ आते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दे फ्लो फ्रॉम माई लिप्स. वो मेरे लिप्स तक आते हैं, मुझे दूसरों से कनेक्ट करते हैं, बट माई वर्ड्स आर नॉट सो गुड. My words are my words sound strange. That's why no one is bothered about that. मैं जो बोलता हूँ वो उतना क्लियर नहीं होता या कोई मेरी बातों को नहीं समझ पाता. इसी वजह से किसी को मुझसे कोई मतलब ही नहीं होता. ना मेरे थॉट्स से कोई मतलब होता है, ना मेरे आइडियाज़ से. नो वन इज़ बॉदर्ड अबाउट माई थॉट्स एंड माई आइडियाज़. माई टंग एंड लिप्स डू नॉट as I ask. I cannot perform the simplest task. Now, my tongue and lips do not as I ask means what I want, what my mind want, but my tongue and lips are not coordinated with me. Means they are not doing what I am asking, what my mind is asking. मैं जो कह रहा हूँ वो मेरी टंग और लिप्स नहीं कर रहे हैं. Even I am not able to perform the simplest task. बल्कि मैं तो सबसे easy task भी नहीं कर सकता. But I have a mind and I'm still there. Don't lock me out in your ignorance there. But yes, I have a mind, active mind. मेरा एक दिमाग है जो सोच सकता है. I am still present there. मैं अभी भी यहाँ पर ही हूँ. प्लीज़ डोंट लॉक मी इन योर इग्नोरेंस. मुझे अपनी इग्नोरेंस में लॉक मत करो. मीन्स मुझे हमेशा इग्नोर मत करो. ये मत सोचो कि नो ही इज़ नथिंग, कि यहाँ पे कोई भी नहीं है. डोंट डू दैट प्लीज़. टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड. प्लीज़ टॉक टू मी. चाहे मेरी बात समझ में आए या ना आए, बट प्लीज़ टॉक टू मी. टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड. प्लीज़ कम विद मी, प्लीज़ सिट नियर मी, प्लीज़ टच मी. Please include me in everything, in your ideas, in your thoughts. Please hold my hand. I am alive. मैं ज़िंदा हूँ. And I have time to give. मेरे पास बहुत वक्त है आपको देने के लिए. Let me share in the life I was given to live. जो ज़िंदगी मुझे दी गई है जीने के लिए, प्लीज़ वो मेरे साथ शेयर कीजिए. Don't
ignore me all the time, don't ignore my ideas and my words all the time, because I am given a life, मुझे भी एक जिंदगी दी गई है, and I have the right to live. So finally we have completed this chapter. You can see this boy who is handicapped and sitting on a wheelchair. Now here we can relate with these words because we can imagine how a handicapped person lives his life. हम देख सकते हैं कि एक handicapped कैसे अपनी life जीता होगा, because he is completely dependent on others on a wheelchair, जो कि ढंग से चल भी नहीं सकते, ढंग से बोल नहीं सकते. So they have a different lifestyle. But हम क्या करते हैं, हम उन्हें ignore करते हैं, and that is our mistake, because they are also human. उनको भी right है सब कुछ करने का, हैप्पीली अपनी लाइफ जीने का. सो वी शुड नॉट इग्नोर सच टाइप ऑफ पीपल, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज उन लोगों को हमें स्पेशल फील कराना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड दे हैव द राइट टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली लाइक अस.